Okay, good morning. Hope you understand the previous video. In that we have discussed that how to plot the standard graph, and after plotting the standard graph, how to calculate the slope value. And by using slope value, what is the way to calculating the concentration of product that is formed. We were discussing regarding the enzyme amylase. In that maltose was formed. So maltose concentration was there on x-axis, on y-axis there will be absorbance, and the plot was plotted like this, and then there was a calculation of slope value using the formula y2 minus y1 divided by x2 minus x1, and we put that value of slope in this formula, that is y is equal to mx plus c. Now c is 0, so the formula is revived as y is equal to mx, and x will be now y divided by m, that is OD value divided by slope. So simple, in case to identify the how much amount of concentration of particular product is formed, we just need to divide the OD value with the slope value. Okay, after you got the list of total concentration which is formed after performing the enzyme activity. See, standard graph is different. Standard graph is helping us to find out the slope value, and by using that slope value we are able to identify the concentration of unknown compound. So say example, if you are reacting your amylase enzyme with the starch, that is a substrate, and you don't know which amount of concentration is formed, so you just need to perform that reaction in which enzyme is reacting with the substrate, and then you need to perform the process and take the OD. That OD will be divided by slope value, so you will get the concentration of the product which is formed, and using that concentration you will able to find out the enzyme activity. Now what is enzyme activity? Let's see the definition of this enzyme activity. Enzyme activity is called as amount of enzyme which produce 1 micromole of the product per minute per ml under the standard assay condition. यूनिट एक्टिविटी उसको कहते हैं कितने अमाउंट ऑफ एंजाइम यूज हुआ, या फिर कितना अमाउंट ऑफ एंजाइम जिसने 1 माइक्रोमोल ऑफ द प्रोडक्ट बनाया per minute per ml, that is called as enzyme activity. Now यहाँ पे दो तीन टर्म इंपॉर्टेंट है. एक तो यहाँ पे concentration of product जो है that is in micromole, यूनिट टाइम जो है that is per minute, and यूनिट कंपोनेंट है that is per ml. मतलब मैं आपको एक ही ml एंजाइम लेना है, एक ही मिनट में कितना रिएक्शन है हुआ है वो चेक करना है, और उसके लिए सबस्ट्रेट जो है वो माइक्रोमोल अमाउंट में कितना बना कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, कितना माइक्रोमोल प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ वो कैलकुलेट करना है. नाउ यूजिंग दिस स्टैंडर्ड ग्राफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई या फिर कैलकुलेट द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म इज इन द माइक्रोग्राम यूनिट, बिकॉज स्टैंडर्ड ग्राफ जो फॉर्म हुआ है उसमें यहाँ पे ये माइक्रोग्राम है, नॉट माइक्रोमोल. सो यू नीड टू कन्वर्ट दिस माइक्रोग्राम into micromole first of all. फिर अगर आप आपके एंजाइम एक्टिविटी में एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट और वो जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो रिएक्शन के लिए 30 मिनट उसको इंक्यूबेट करते हो, या 10 मिनट उसको इंक्यूबेट करते हो, या 20 मिनट उसको इंक्यूबेट करते हो, यू नीड टू कन्वर्ट दिस टाइम पर मिनट, कि एक मिनट में कितना माइक्रोमोल प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट हुआ वो आपको चेक करना है. सो इन दैट केस यू नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, एंजाइम एक्टिविटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, जो भी आपको मिला होगा. अगर आपने माइक्रोग्राम का स्केल रखा है स्टैंडर्ड ग्राफ में, तो ये प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन आपको माइक्रोग्राम में मिला होगा. ओके, इनटू टोटल ml. टोटल ml मीन्स एंजाइम सबस्ट्रेट और बफर मिला के कितने ml का सिस्टम बनता है वो, दैट इज कॉल्ड एज अ टोटल ml ऑफ द सिस्टम. फिर मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट ऑफ व्हाट, मोलिकुलर वेट ऑफ द प्रोडक्ट. अगर हम एमाइलेज एंजाइम की बात करें
सो एमाइलेज एंजाइम के केस में द प्रोडक्ट इज माल्टोज, तो उसका मोलिकुलर वेट 342 समथिंग है. इफ इट इज सेल्यूलेज एंजाइम जिसका प्रोडक्ट ग्लूकोज है, so you will divided that with the glucose molecular weight, that is 180. now ml of enzyme, कितना ml सिस्टम में आप एंजाइम लेते हो, एंड इंक्यूबेशन टाइम. और अगर रीडिंग लेने के लिए आपने कोई डाइल्यूशन किया है तो यहाँ पे आपको डाइल्यूशन फैक्टर ऐड करना पड़ेगा. डाइल्यूशन फैक्टर. ओके, so this is how the enzyme activity will be calculated using this formula. अभी ये फॉर्मूला मैंने जनरल लिखा है क्योंकि इसमें वेरिएशन हो सकता है. से एग्जांपल हमारे एमाइलेज एंजाइम में हमने 1 ml बफर, 1 ml एंजाइम और 1 ml सबस्ट्रेट यूज किया है. तो हमारा सिस्टम जो है वो 3 ml का है, 3 ml का है, राइट. सो यूजिंग दैट स्लोप वैल्यू आप कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे. यहाँ पे हमने कितना निकाला था, 400 माइक्रोग्राम था वो, ठीक है. तो से एग्जांपल प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, दैट इज 400 माइक्रोग्राम. आई रिपीट 400 माइक्रोग्राम इनटू टोटल ml. 1 ml एंजाइम, 1 ml सबस्ट्रेट, 1 ml बफर. तो टोटल ml का सिस्टम क्या हो गया है, 3 ml हो चुका है. मोलिकुलर वेट हम लोग एमाइलेज एंजाइम ले रहे हैं तो माल्टोज का मोलिकुलर वेट लेना पड़ेगा, दैट इज 342 और 343 समथिंग, जो भी है 343 या फिर 342 जो भी होगा वो एग्जैक्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. इनटू आपने सिस्टम में एंजाइम कितना लिया था, तो दैट इज 1 ml. इंक्यूबेशन टाइम अगर आपका 30 मिनट का है तो 30 मिनट लिखो, 20 मिनट का है तो 20 मिनट लिखो, 10 ml का है तो 10 ml लिखो, जो भी है. ओके, ये डालो. डाइल्यूशन फैक्टर अगर नहीं है तो इंटू 1 होगा, अगर वो 2 है तो 2 होगा, अगर वो 5 है तो आपका 5 होना चाहिए. ओके, इन केस ऑफ एमाइलेज मोस्टली हम जो कर रहे हैं उसमें डाइल्यूशन फैक्टर नहीं है, इसलिए इंटू 1 होगा यहाँ पे. ये कैलकुलेट करो. इसमें जो आपको फाइनल रीडिंग मिलेगा, दिस विल बी माइक्रोमोल पर ml पर मिनट, right, and you can calculate the amylase enzyme activity. in case of cellulase enzyme, यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो भी आएगा वो टोटल ml 3 ml रहेगा सिस्टम. मोलिकुलर वेट 343 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 180 ml, 180 ग्राम. ml ऑफ एंजाइम एक ही रहेगा. इंक्यूबेशन टाइम उसका अगर 10 मिनट है तो 10 मिनट लिखो, 30 मिनट है तो 30 मिनट लिखो. समझ में आया. अगर जैसे कि pH टेम्परेचर के जो प्रैक्टिकल है, वेरियस pH एनालिसिस, वेरियस टेम्परेचर एनालिसिस, उसमें जो सिस्टम है दैट इज टोटल ml ऑफ सिस्टम आप यूज करते हो, दैट इज 2 ml. तो हियर इन केस ऑफ 3 यू विल राइट 2. अगर उसमें एंजाइम 1 ml जा रहा है तो यहाँ पे 1 ml ही आपको लिख रहा है. सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. अकॉर्डिंग टू दैट जो भी कैलकुलेशंस है वो चेंज करो. डाइल्यूशन फैक्टर ऐड करना है तो ऐड करो और एंजाइम एक्टिविटी कैलकुलेट करो. फिर जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे इसका, तो एक्स एक्सिस पे देयर विल बी कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी जो भी फैक्टर है जैसे कि pH हो गए, टेम्परेचर हो गए, एंड वाई एक्सिस पे देयर विल बी एंजाइम एक्टिविटी. ओके, नाउ होपफुली अभी आपको हाउ टू कैलकुलेट एंजाइम एक्टिविटी वो समझ में आया है बाय दिस सिंपल वे. इफ यू अंडरस्टैंड इट, like the video. If you don't, leave the comment so that I can solve your problem.